देखो राजा, क्वेश्चन नंबर पहला करने लगे 22। कहते मिस्टर बी owns a house property at Cochin. It consists of three independent equal units and information about the property is given below. ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ क्वेश्चन आया। Your property is divided between three independent units. समझ रहे पूरा पूरे प्लेस का हाउस है। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਪੋਰਸ਼ਨਸ ਬਣੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਕਈ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਇਦਾਂ ਪੋਰਸ਼ਨਸ ਕਿ ਤਿੰਨ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆ, ਕਹ ਲਓ ਤਿੰਨ ਬ੍ਰਦਰਸ ਇਕੱਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੇਮ ਪੋਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਿਮਿਲਰ ਬਣਾਤੇ, ਨਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ, ਬਸ ਤਿੰਨ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਤੇ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇੱਕ ਫੈਮਲੀ ਫੋਰਨ ਚਲ ਗਈ, ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲ ਗਈ, ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ, ਸਭ ਦਾ ਉਹ ਦੋ ਯੂਨਿਟਸ ਖਾਲੀ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ बिजनेस, और एक की करना शुरू करता लेट आउट थी किराए थे, हो सकता ना इतना। सो दिस वाज द कंसेप्ट, यस और नो। तीन इंडिपेंडेंट इक्वल यूनिट से उस प्रॉपर्टी दे, एक च तुसी खुद रह रहे हो ओन रेजिडेंस, वन यूनिट वाज लेट आउट एंड वन यूनिट की कर रहे तुसी अपना बिजनेस। एमआरवी ऑफ द फुल प्रॉपर्टी इज 1,20,000 पर एनम। एफआरवी बोलो 1,32,000 पर एनम। स्टैंडर्ड रेंट 1,08,000 per annum. Rent 3,500 per month. Unrealized rent is for 3 months. The repairs and insurance to see use nahi karni because we get a standard deduction only. Interest on money borrowed for purchase of property. Interest on money borrowed तो समझ आया loan. Interest on loan ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ property ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ loan ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ interest pay ਕਰ ਰਹੇ, this is interest on loan. Municipal taxes 14,400. Date of completion, this property was completed in 1st November, on 1st November 2000, sorry 1998. Compute the income from house property under the new tax regime. ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ, ओल्ड एंड न्यू बोथ। ਪਹਿਲਾਂ ओल्ड ਸਿੱਖੀਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਿੰਨ ਯੂਨਿਟਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਫਰਸਟ ਯੂਨਿਟ ਸੈਲਫ ਆਕਿਊਪਾਈਡ, ਸੈਕੰਡ ਲੈਟ ਆਊਟ, ਥਰਡ ਬਿਜ਼ਨਸ। एमआरपी गिवन सी three independent and equal units, equal ਤਾਂ divide by 3, ਤੁਸੀਂ MRV divide करती by 3, FRV divided by 3, standard rent divided by 3, yes or no? करता क्वेश्चंस हो गए। आगे की बना रेंट, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਪਰ ਐਨਮ, ਇਹ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੰਥ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ इंटू 12 तो साल का समझ आऊ, और कुछ रेशियो की है स्प्लिट करना तिना किस रेशियो 1:1:1 क्यों करना स्प्लिट दसो, उठ जाओ माड़ा जा। रेंट तो सिर्फ आ किदा रहा लेट आउट का, वेरी गुड जान। रेंट आ ही किदा रहा हुंदा रहे लेट आउट पोर्शन का, ओन रेजिडेंस का रेंट आऊगा, जिथे बिजनेस कर रहे रेंट आऊगा, फिर उन्होंने क्यों स्प्लिट करना। बट गलती कॉम आना, बट जानवी ने दिमाग लाया था ना पहले ही, सोच आ गया सी ना माइंड, ताही when I asked चेष्टा for ratio उन्हें डिनाई करता कि रेशियो क्यों पूछ रहे हैं। ठीक है, दिमाग चलाना। रेंट का ऑलरेडी सिर्फ किदा आ लेट आउट पोर्शन का, फिर क्यों स्प्लिट करना। सो रेंट इज 3,500 पर मंथ। अनरियलाइज्ड रेंट भी उसी पोर्शन का होगा फॉर 3 months। इंटरेस्ट ऑन लोन सिंपली डिवाइड बाय 3, म्युनिसिपल टैक्सेस सिंपली डिवाइड बाय 3। इजी, यस और नो। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ओल्ड टैक्स रिजाइम ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ। यूनिट 1 ਸੈਲਫ ਆਕਿਊਪਾਈਡ, यूनिट 1 ਸੈਲਫ ਆਕਿਊਪਾਈਡ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਆਕਿਊਪਾਈਡ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਵੀ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਦ ਸੈਲਫ ਆਕਿਊਪਾਈਡ ਹਾਊਸ ਫਰੋਮ NAV ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 23(2), ਯਸ অর নো। ਕਿਤੇ ਕਰਦੇ ਨੀਲ ਮਾਈਨਸ डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24, that is actual IOL और 30,000 whichever is less। तो इसे 30,000 आ गया क्योंकि एक्चुअल था 32 सीगा उस पोर्शन का, और 30,000 विच एवर इज लेस, तब पहले हाउस किया गया लॉस फ्रॉम यूनिट 1 दैट इज 30,000 नेगेटिव आ गया है ना, लॉस होया। यूनिट 2 की करोगे प्रॉपर सॉल्विंग, सो जीएवी ली की करोगे पहला एमआरवी और एफआरवी उसी यूनिट दी देखनी हूं, विच एवर इज हायर कितना आ गया 44,000,
then step 2 is ERV is equal to step 1 or standard rent whichever is lower, तो 44 और 36 आ गया. step 3 step 2 और actual rent minus unrealized rent, the actual rent बनया 3500 into 12, वो जो unrealized कितना आया 3500 into 3, actual rent 12 महीने था, unrealized कितना 3 months था. actual कितना जब लेट आउट की गली कर रहे हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड तो हो भी गया, जीए भी तो सेकंड यूनिट से ही आ रहे हैं ना आपा, क्योंकि एक्चुअल रेंट 3500 पर मंथ था इंटू 12, और जो अनरियलाइज कितने मंथ्स था 3 मंथ्स था, बाहर कर दोगे माइनस, देन कंपेयर करना विच एवर इज हायर, यस और नो. दोस्तों थर्ड स्टेप पे आना पड़ो, हायर ऑफ सेकंड स्टेप और एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड, एक्चुअल इज फॉर 12 मंथ्स एंड अनरियलाइज्ड इज फॉर 3 मंथ्स, सॉल्व करके विच एवर इज हायर लोगे तो ना जो हायर की आया 36,000. then GAB is equal to step 3 minus vacancy allowance, vacant था नहीं रहा कर, no, so 36,000 ही आ गया. then solving portion च GAB कितना आ गया 36,000 minus municipal taxes paid by owner, इस यूनिट था कितना 4800 माइनस करता की आ गया नैव आ गया. then minus deductions under section 24 केड़ी मिलनी स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी 30% ऑफ नैव. दीपाली डाउट है कितने रहे पक्का डिडक्शंस 24A तक कोई डाउट श्योर सृष्टि ऑनलाइन किसने डाउट हो रहा है इस पोर्शन एंड से पूछ लियो ठीक है. तो स्टैंडर्ड डिडक्शन इज 30% ऑफ नैव पुट करती, देन माइनस बी पॉइंट की आना इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन एच कंडीशन है कोई नो, नो अमाउंट लिमिट, सो 32,000, सो माइनस करके तो को आया नेगेटिव 10,160, दैट इज अगेन लॉस फ्रॉम यूनिट 2. एनी डाउट यूनिट 3 ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਪੀਜੀਬੀਪੀ ਹੈਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. that portion now relates to your business, ठीक है. तो यूनिट 3 कैलकुलेशन अंडर द हेड पीजीबीपी. सो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की आई अगर ਅਸੀਂ ओल्ड रिजाइम ਚ जो सॉल्व ਕੀਤਾ यूनिट 1 ਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਸੀ नेगेटिव 30,000, यूनिट 2 ਦਾ नेगेटिव 10,160, सो टोटल ਕੀ ਆ ਗਿਆ नेगेटिव 40,160, यस और नो. बट ਹੁਣ ਆ ਪੜੋ with effect from assessment year 22-23, if an assessee is to be taxed under section 115 BAC 1A, this is under the new tax regime. पढ़िया से पहले चैप्टर में ये लाइन 115 BAC 1A new tax regime, the deduction under section 24B, that is interest on loan for self occupied house property, shall not be allowed. न्यू टैक्स रिजाइम च चीज याद करो, ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਲੈਸਨ ਚ ਨਿਊ ਔਰ 올ਡ ਦਾ ਕੁਝ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਸਿੱਖਿਆ. ਨਿਊ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਲੈਬ डिडक्शन ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਘੱਟ ਸੀ, ਰਿਬੇਟ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ. ਰਿਬੇਟ ਪੁਰਾਣੇ ਚ ਮਿਲਦੀ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ, ਨਿਊ ਚ ਮਿਲੀ ਸੀ 7 ਲੱਖ ਤੱਕ. ਤਾਂ ਜਿਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਟੈਕਸ ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਵੀ ਸਲੈਬ 3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸੀ 6 ਤੱਕ ਸੀ ਇਦਾਂ ਸੀ ਨਾ 7 ਤੱਕ 3 to 7 ਸॉल्व कर भी लिया टैक्स बना लिया, बट अगर 7 लाख तो नीचे है इनकम रिबेट मिल जानी टैक्स विल गो टू 0, मींस इनडायरेक्टली 7 लाख तक ਤੁਹਾਡਾ टैक्स माफ करता एग्री, बट ਉਹਦੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਪਰਸਨ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਕਿ 올ਡ ਔਰ ਨਿਊ ਦਾ 7 ਲੱਖ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, 7 ਲੱਖ ਸਾਲ ਦਾ ਨੋਰਮਲ ਪਰਸਨ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 30,000 ਦੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ठीक है मंथली 30,000 मंथ 50,000 मान लो, जो मंथली 50,000 ਦੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੋਈ ਉਹਦੀ 6 ਲੱਖ, ਤਾਂ 7 ਲੱਖ ਤੱਕ ਮਾਫ ਆ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ. नॉर्मल इंसान 50,000 तक अर्न करता है आजकल जॉब से, वो भी बहुत ज्यादा शुरू तो नहीं मिलता. सो 50,000 तक अर्न करके भी तुसी 7 लाख के नीचे आ रहे, तुसी कहोगे मैंने टैक्स तक कोई पैना नहीं, न्यू टैक्स रिजाइम इज गुड, 7 तक कोई दिक्कत ही नहीं, मेरी प्रमोशन भी हो जाओगी, मैं 7 के अंदर अंदर ठीक है.
ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸਾਈਡ ਹੈਡਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸੈਲਫ ਆਕਿਊਪਾਈਡ ਹਾਊਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਲੋਨ ਦੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲ ਔਰ 30,000 ਵਿਚ ਐਵਰ ਇਜ਼ ਲੈਸ। ਨਿਊ ਟੈਕਸ ਰਿਜਾਈਮ ਇਸ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਦਾ ਨਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਲੈਬਸ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਤਾਂ ਦਿਖਣਾ ਸਭ ਨੂੰ। ਇਨਸਾਈਡ ਹੈਡ ਵੜ ਕੇ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਥੋੜੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਈਡ ਇੰਨੀ ਟੈਕਸ ਚ ਜਾਓਗੇ ਕਦੇ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਭ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਏ ਨੇ ਬਣਾਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। The person shifts to the new regime very easily ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦਿਖਦਾ 7 ਲੱਖ ਤੱਕ, ਚੱਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਈਜ਼ੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇਨਸਾਈਡ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਡਿਡਕਸ਼ਨਸ ਰਿਮੂਵ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਗੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਚਾਰਟ। ਔਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਰੂਲ ਇਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਊ ਟੈਕਸ ਰਿਜਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਰੂਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ 올ਡ ਤੋਂ ਨਿਊ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਓਵਰ। ਨਿਊ ਚ ਆ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਨਿਊ ਚ, 올ਡ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਲੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਹਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਮੂਵ ਕਰ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ 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 ਇਹਨਾਂ ਨੇ 올ਡ ਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਔਖਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ 올ਡ ਚ ਦੁਨੀਆ ਕਹੇ ਚੱਲ ਨਿਊ ਚ ਚੱਲ, ਉਸ ਦਿਨ 올ਡ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੰਦ। 올ਡ ਚ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਜੀਟੀਆਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਰਿਡਕਸ਼ਨਸ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 80 ਸੀ ਤੋਂ 80 ਯੂ, ਹੈ ਨਾ, ਪੜਿਆ ਨਾ? ਉੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨਸ ਨਿਊ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ 7 ਲੱਖ ਤੱਕ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਡਿਡਕਸ਼ਨਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ? ਬਟ ਜਿਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਉਹਦੀ ਨੀਡਡ ਆ, ਉਹਦੀ ਰਿਟਰਨ ਚ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਹਾਊਸ ਲੋਨ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਡਕਸ਼ਨਸ ਦਿਲਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੈਕਟਰਸ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨ ਚ ਈਜ਼ੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਡਕਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ 올ਡ ਟੂ ਨਿਊ ਚ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਪੜਿਆ ਕਿ ਵੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਮੂਵ ਟੂ 115 BAC 1A ਨਿਊ ਟੈਕਸ ਰਿਜਾਈਮ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਚ ਜਾਓਗੇ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 24B ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਸੈਲਫ ਆਕਿਊਪਾਈਡ ਹਾਊਸ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤੀ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਰਿਮੂਵ ਹੋਈ? ਸੈਲਫ ਆਕਿਊਪਾਈਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਚੇਂਜ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ, ਸਿਰਫ यूनिट 1 यूनिट 1 नैब अंडर सेक्शन 23 तो की लिखोगे नील। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A तो मिलनी नहीं सी, उदा भी नील ही बननी, 24B भी नील बननी। तो मींस हाउस 1 का आंसर, यूनिट 1 का आंसर ਤੁਹਾਡਾ न्यू रिजाइम च नील आऊगा। पहले का नील, दूजे का -10,160, तो ओवरऑल न्यू च की आऊगा -10,160 ही आऊगा। है मैं क्लियर? इसलिए ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਯਾਦ ਹੀ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ 올ਡ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬੇਸ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਸ योर क्वेश्चन नंबर 20 22 ਨਿਊ ਚ ਵੀ 22 ਹੀ ਹੈ। ਐਨੀ ਡਾਊਟ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਨਿਊ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, पेपर ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦਾ, ठीक है राजा। और देख लीजिए क्वेश्चन, वाला देखो क्वेश्चन नंबर 7। पेज नंबर वुड बी जितना होना इतने 299 है, दिस इज 298, सो ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇਖ ਲਿਓ 1.296 फर्स्ट यूनिट 296 पेज क्वेश्चन नंबर 7 की लिखे कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर फ्रॉम इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। फर्स्ट पॉइंट इज गिवन MRV म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू, मिल गया राजा? इधर देख लो पहला समझ लिए। रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 24,000, रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इट denotes your property is let out, this is actual rent। municipal taxes 1800 per annum but 50% paid by tenant, deduction कितनी मिलती? paid by owner दी। जितनी बार बोलोगे ਤਾਂ ਇੱਥੇ याद ਰਹੂਗਾ, नहीं तो भूल जाना। हाफ इज पेड बाय टेनेंट, ਉਹਦੀ डिडक्शन नहीं मिलनी, हाफ इज पेड बाय ओनर, ਉਹਦੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਤਾਂ 900 ਦੀ ਮਿਲੂਗੀ। expenses incurred on repairs, leave that, by owner and by
ਟੇਨੈਂਟ ਓਕੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰजेस ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮੈਟਸ ਕਿਤੇ ਪੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਡੇਟ ਆਫ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਊਸ 1 ਜੂਨ 1998 ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡੇਟ ਆਫ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਚਾਹੀਏ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਈ ਅੱਗੇ ਸਮਝ ਆਊਗਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੰਸੈਪਟ ਹਲੇ ਐਡ ਹੋਣਾ ਅਗੇਨ ਉਹ ਵੀ ਕੰਸੈਪਟ ਰਿਲੇਟਸ ਟੂ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਲੋਨ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟ ਆਫ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸਮਝ ਆਊਗਾ ਸੋ ਬੋਲੋ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਇਨਕਮ फाइंड करनी स्टेप की करोगे ये लेट आउट है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है लेट आउट कितों पता चलिया लिखा था है नहीं रेंट रिसीव्ड तो अगर लेट आउट आता पहला जीएवी कैलकुलेशन स्टेप 1 एमआरवी एफआरवी व्हिचएवर इज हायर है ही नहीं एफआरवी एक नॉट एप्लीकेबल था एमआरवी आंसर आऊगा 18000 स्टेप 2 ईआरवी इज इक्वल टू स्टेप 1 और स्टैंडर्ड रेंट भी नॉट एप्लीकेबल व्हिचएवर इज लोअर सो आही 18000 ही आया ना स्टेप 3 स्टेप 2 और एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज अनरियलाइज कुछ नहीं कहता एक्चुअल रेंट कितना 24000 व्हिच एवर इज हायर तो 24000 ते आंसर शिफ्ट हो गया ਤੁਹਾਡਾ जीएवी इज इक्वल टू स्टेप 3 माइनस वैकेंसी अलाउंस नहीं है कितने 24000 जीएवी आ गया एनी डाउट टेबल च गए जीएवी लिखा कितना 24000 माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर दैट इज रुपीज 900 यस और नो पेड बाय ओनर वाला डिडक्शन मिलूगा नैव आगे देन डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 ए स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ नैव वेरी इजी इंटरेस्ट ऑन लोन है क्वेश्चन नो आंसर 16170 एनी डाउट इजी क्वेश्चन केड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ सब तो इंपॉर्टेंट इज म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर वाला पॉइंट 50% बाकी लेट आउट आके सेल्फ ऑक्यूपाइड दैट इज डिनोटेड फ्रॉम रेंट रिसीव्ड ठीक है यस और नो इजी वेरी स्मॉल हुन इधर आओ दिस इज योर नेक्स्ट कंसेप्ट कंसेप्ट से इतना पा लिया करो ताकि यू गेट टू नो इन योर नोट्स कि दिस इज अ न्यू कंसेप्ट टू लर्न इंटरेस्ट ऑन लोन ਦੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਹੀ ਐਡ ਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਇੱਥੇ ਐਡ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਲੈਸ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੱਸਦਾ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਲੋਨ ਕਾਦੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋਨ ਕੈਨ ਬੀ ਟੇਕਨ ਫॉर purchase of the house property then construction of house property then renovation repair yes or no ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਾਮ ਆਂਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਮੌਰਟਗੇਜ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੌਰਟਗੇਜ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸੋਗੇ गिरवी रखिया तुसी अपनी राजा प्रॉपर्टी गिरवी रखी और उत्ते लोन लिया वो लोन तुसी उस प्रॉपर्टी दी कंस्ट्रक्शन ले लिया होगा ऑब्वियसली नो उस तो बनी हुई प्रॉपर्टी नु गिरवी रखिया मॉर्गेज कीती मतलब देयर नॉर्मली 99% द पर्पस विल बी समथिंग एल्स इट विल नॉट बी द कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट प्रॉपर्टी सो जब तुसी अपनी प्रॉपर्टी ही गिरवी रखती ओदे अगेंस्ट लोन लिया चाहे बेटी दी ब्याह ले लिया किसी चीज ले लिया इधर एग्जांपल भी आऊगा ਤੁਹਾਨੂੰ फॉर डॉटर्स मैरिज ठीक है पॉइंट इज अनलेस वो कहंदे कि वो पैसा उसी घर ते यूज करना ਤੁਹਾਨੂੰ डिडक्शन नहीं मिलती ਤੇ ਕਾਹਦਾ डिडक्शन ਮਿਲਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਲੋਨ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੋਨ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਚੋਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਥੋੜੀ ਇਹ ਸੁਣੋ अगर मैं उस हाउस ने गिरवी रख के लोन लिया 99% माय रीजन विल बी समथिंग एल्स बट एक भी रीजन जेन्युइनली हो तो सकती कि मैं हाउस नु गिरवी रखिया लोन लिया उस लोन ना मैं ऊपर एक फ्लोर ऐड कर रहे हैं अपने घर सो उत्थे आया अनलेस मनी इज टू बी यूज्ड फॉर दैट हाउस प्रॉपर्टी ओनली फिर तो मिल जाऊगा बट अगर नॉर्मली वर्ड आया इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी तो नॉर्मली 99% माइंड की कहता असम्पशन की कहती कि इट विल बी फॉर सम अदर पर्पस इट विल बी फॉर सम अदर पर्पस तो अलाउड नहीं हो क्लियर हुई निकल तो लाइन रीड करो दोबारा इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन अनलेस मनी इज टू बी यूज्ड फॉर द सेम हाउस प्रॉपर्टी या एनी फॉर द हाउस प्रॉपर्टी ये भी हो सकता मैं इस हाउस नु मॉर्गेज किया इस एक हाउस प्रॉपर्टी मॉर्गेज की लोन लिया ਉਹਦੇ अगेंस्ट और ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं एक हाउस प्रॉपर्टी ही तैयार कर रहे हैं देन इट्स ओके सोची जा सकती है पॉइंट आऊगा वो भी पॉइंट बट किसी अदर पर्पस लिए कर लिया फिर नहीं ठीक है हाउस ते लोन लेके कार खरीद ली हाउस प्रॉपर्टी हेड चुका था इंटरेस्ट ऑन लोन दी डिडक्शन बिल्कुल भी नहीं आगे चीज
इंटरेस्ट ऑन लोन ਦੇ ਰੂਲਸ ਪੜ੍ਹੇ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਆਕਿਊਪਾਈਡ ਸਾਈਡ ਔਰ ਇੱਕ ਲੈਟ ਆਊਟ, ਔਰ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਡੀਮ ਟੂ ਬੀ ਲੈਟ ਆਊਟ। ਡੀਮ ਟੂ ਬੀ ਲੈਟ ਆਊਟ ਤੇ ਹੱਲੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਟ ਆਊਟ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰੋ। ਲੈਟ ਆਊਟ ਕੀ ਪੜਿਆ, ਨੋ ਲਿਮਿਟ, ਔਰ ਸੈਲਫ ਆਕਿਊਪਾਈਡ ਚ ਨॉर्मल ਕੀ ਪੜਿਆ, एक्चुअल और 30,000 विच एवर इज लेस। और न्यू टैक्स रिजाइम की कर लिया कि 115 बीएसी वाने के अकॉर्डिंग नो डिडक्शन, यस और नो डिडक्शन अलाउ। रूल सारे याद रखने पैने, ओल्ड और न्यू। जब तक हुण जेडे बच्चों के सिलेबस रहूगा वो उदों तक रहना जब तक एक्चुअल च रहूगा, तो वो बच्चों को ओल्ड एंड न्यू दोनों की चीज़ां पढ़नियां पैन। ठीक है, हले तो सैलरी हेड च RFA का पॉइंट है, पिछले साल वाले बैच इकलौता बैच ना, उस तो पहला वो पॉइंट होता था ना हुण तुहाडे बैच ये होना, उस बैच ने इन्नी तंगी ओदी फेस की। एक तो ओल्ड और न्यू च डिफरेंस सी रूल्स का, एक 6 मंथ्स ते रूल चेंज हो गया इन बिटवीन सितंबर ते, उन्होंने मंथ्स का भी एग्जैक्ट करना पे भी ये हाउस का पॉइंट पहले 6 मंथ्स ऑफ द ईयर च के बाद वाले च, क्योंकि उस तो पहला एक रूल चलता सी, सितंबर च इन्होंने रूल चेंज किया, उस तो बाद एक रूल चलता सी, वो बच्चों लिए उत्थे भी स्प्लिट होया साल। हुण तुहाडे लई न्यू रूल ही रहना, उस तो पहले वाली पुराना रूल ही सी, इन्हां लई वो वाला भी आ पिछले बैच वास्ते इन्ना मुश्किल हो गया सी वो पॉइंट, बार 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 करी जाओ। इट इफेक्ट्स 5th सेम आल्सो 6th सेम आल्सो। पर्टिकुलर असेसमेंट यार इकलौता बेचारा फंसया सी उस पॉइंट। सो पॉइंट वाज सेल्फ ऑक्यूपाइड से सी की क्या एक्चुअल और 30,000 विच एवर इज लोअर। न्यू टैक्स रिजाइम कहना नो नो डिडक्शन, ओल्ड ने की क्या एक्चुअल और 30,000 विच एवर इज लेस, but 30,000 can be replaced by rupees 2 lakh if three conditions are fulfilled. सेल्फ ऑक्यूपाइड नॉर्मल ओल्ड की लिमिट सी बोलो 30,000 लिमिट सी, अपर लिमिट मैक्सिमम 30,000 डिडक्शन मिल सकती, बट ओदी जगह 2 लाख यूज करोगे when these three conditions are fulfilled. First condition, loan should be taken on or after 1st April 1999. Loan should be taken, बोलो on or after 1st April 1999। उस तो बाद लोन शुड बी टेकन फॉर द पर्पज ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन। लोन लिया था कि 4 पर्पज ली जा सकता सर, परचेज करना कंस्ट्रक्ट करना, बट रेनोवेशन एंड रिपेयर ली भी तो दुनिया लोन ले लेंदी। अजकल वो किहड़ा सस्ती होंदी रेनोवेशन रिपेयर, दुनिया कहती मेरे को नहीं पैसे, चल लोन लैके बना दो घर, परवाह नहीं करती अजकल, है ना दुनिया, शो ऑफ द टाइम। सो पॉइंट इज रेनोवेशन रिपेयर परचेज कंस्ट्रक्शन चारों अपने यूजेस है लोन दे, बट ये वाला 2 लाख वाली कंडीशन तक कदों मिलूगा इफ लोन वाज टेकन फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन, क्योंकि परचेज एंड कंस्ट्रक्शन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव आउट ऑफ द 4। रिपेयर ठीक हो सकती, रेनोवेशन थोड़ी एक्सपेंसिव हो सकती, बट 2 लाख वाला पॉइंट ही मिलूगा इफ इट इज टेकन फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन। थर्ड वन, हाउस कंस्ट्रक्शन should be completed within 5 years from the end of financial year in which the loan was taken। जिस साल लोन लिया ਉਹਦੇ फाइनेंशियल ईयर एंड तो 5 साल च घर कंप्लीट होना चाहिए। ਹੁਣ समझे डेट ऑफ कंप्लीशन क्यों आया, क्वेश्चंस कुछ हले यूज च नहीं आया, आगे आऊगा, बट डेट ऑफ कंप्लीशन गिवन था सी ना, यस और नो। की रूल्स है बोलो, लोन शुड बी टेकन फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन, टेकन ऑन or after 1st April 1999, and house construction should be completed within 5 years from the end of financial year in which the loan was taken। पूरे ध्यान ਨਾਲ लाइन स्टडी करो, 5 years from the loan date नहीं क्या, बच्चे की गलती करते सुनो। क्वेश्चन ने तो सपोज किया लोन वाज टेकन ऑन 1st December 21, बच्चे ने रूल से याद सी कि 2 लाख वाला पॉइंट चलता है अगर 5 इयर्स 5 इयर्स 5 इयर्स इन्ना के याद ऊपर ऊपर पढ़ते हैं ना बच्चे, इन डेप्थ तो जानते ही नहीं। जिस बच्चे ने 5 इयर्स सोचे उन्हें 1 दिसंबर च 5 साल ऐड कर, 5 साल ऐड करोगे 26 से जाऊगा, 5 ईयर ऐड करो 26 से जाऊगा, सो दैट की करूगा पॉइंट बच्चा करता है कि 1 दिसंबर का लोन से 5 इयर्स कंप्लीट होने हैं अपने 30 नवंबर 2026 में। बच्चे उतने तक सोए थे, क्वेश्चन ने की लाइन ने की लिखा, फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द लोन वाज टेकन। पहली गल हुण दसो लोन कर लिया 1 दिसंबर 21,
ਇਹਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ 31 ਮਾਰਚ 22 ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ 5 ਸਾਲ from the end of financial year in which the loan was taken so ਉਲਟਾ ਰਿਵਰਸ ਸੋਚੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਸਾਲ ਚ ਲੋਨ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ 1 ਦਸੰਬਰ 21 ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਕਿੱਥੇ ਐਂਡ ਹੋਣਾ ਐਂਡ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ 31 ਮਾਰਚ 22 ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ 5 ਇਅਰਸ ਐਡ ਕਰ ਦੋ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ that becomes 31 ਮਾਰਚ 27 ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਅਗਲੇ ਦਾ ਦੱਸੋ ਲੋਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਫਰਵਰੀ 2020 1 ਫਰਵਰੀ ਸੀ ਨਾ 1 ਫਰਵਰੀ 2020 1 ਫਰਵਰੀ 2020 ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਕਦ ਖਤਮ ਹੋਣਾ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਉਹ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਐਡ ਕਰ ਦੋ 31 ਮਾਰਚ 25 ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੀ ਆ ਇੱਥੇ ਦਸੰਬਰ ਸੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਦਸੰਬਰ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਐਂਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਚ 5 ਸਾਲ ਐਡ ਕਰੋ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਐਂਡ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ 20 ਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਹੋਣਾ ਉਸੇ ਸਾਰੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਖਤਮ ਤੇ ਉਹ ਚ 5 ਇਅਰਸ ਐਡ ਕਰ ਦੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਯੈਸ অর ਨੋ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਨੈਕਸਟ ਕਨਸੈਪਟ ਇਜ਼ ਪੀਸੀਆਈ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੋਟ ਕਰਾਉਂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਆ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਨੈਕਸਟ ਕਨਸੈਪਟ ਅਗੇਨ ਆਈਓਐਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਲੋਨ ਦਾ ਹੀ ਆ ਸਮਝਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਐਡ ਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਜ਼ੀਲੀ ਪੀਸੀਆਈ ਦਾ ਮੇਨ ਇੱਕ ਕੰਸੈਪਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਠੀਕ ਚੱਲਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਓਐਲ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਰੋ ਕੁਐਸਚਨ 22 ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕੁਇਕ